Okay, so the immunity is not only dependent on food, it is dependent on two more factors. That is your habits and your mindset. First, let's talk about habits. As I said, due to lockdown, there is a lot of schedule that has been disturbed. People are sleeping late night. They are waking up at any time they want to. Lunch का कोई ठिकाना नहीं है, dinner का कोई ठिकाना नहीं है. So, firstly, set that right. It is like a normal day. You are working, but you are working from home. So make sure it is scheduled properly. I know it is very difficult. It is difficult for me also, but you have to accept that this is how it is. So you cannot play with your body like this. You have to keep a fixed schedule. Plus your workout. At least 30 minutes to workout, you can give 30 minutes to yourself. You can't go down and work out. What you can do is you can do home-based workouts. There are so many free apps that are running. There are YouTube, on the YouTube, there are things that are free. So you can start doing that. At least 30 minutes a day is something which is very necessary. And by mindset, I mean, if you think positive, there is a lot of things that is going to affect your mind. As we said, whatever you think, it becomes like, you can see that. Yes. So firstly, you have to have a good set of mind. Just you need to think positive. So that is also going to help. Plus stress. Stress से immunity पे बहुत फर्क पड़ता है. So this thing also you should take care. Let's come back to food. See, there are 10 food and food groups that you should avoid. First is coffee, tea, and milk. A lot of milk. I know you were drinking. You were drinking. But 3 cups or 2 cups a day is absolutely all right. And that should be cup. This is a mug. So make sure the quantity is... No, that is not cup. Cup is a small cup, जो छोटा होता है. Mug बहुत बड़ा होता है. उसमें ml difference बहुत ज़्यादा होता है. तो उसमें sugar intake बहुत ज़्यादा होगी. Caffeine बहुत ज़्यादा पड़ेगा. Anyway, I don't consume sugar, but हाँ, caffeine का problem तो है. But overall, most days I'm just taking 1 mug or maximum 2 mugs, and my mugs are not full, so I get that point. But India में चाय का बहुत है. I mean, everybody's having chai. People are laughing. I really understand. No, I understand, because when I was working at a holistic healthcare clinic, I was under tremendous pressure. Plus, there was a lot of work that we were doing. So even I had a habit of gulping tea every 1 hour, 2 hour. Then at the end of 6 months, I realized that I'm taking so much of sugar that it is actually giving me my skin a dull look. My hair, I see hair fall, I see lethargy, my energy levels were low. So I could see that it is affecting me, it is affecting my energy level. So I had cut down completely, and from that day I am totally sugar free. I take sugar, it is not that totally sugar free, but I reduce it a lot. I make sure it is at least just 2 cups a day, not more than that. Normally with the kids, what happened, when I consult a mother, I'm a mother myself. So what happens, sometimes we feel कि रात को बच्चा कुछ खा के नहीं सो रहा है तो दूध ही पिला दो, थोड़ा सा शक्कर डाल के बॉर्नविटा डाल दो या हॉर्लिक्स डाल दो. दिन में कुछ खा नहीं रहा है तो थोड़ा सा दूध ही दे दो, थोड़ा सा शक्कर डाल दो. तो दिस थिंग इज ऑल्सो दैट इज इफेक्टिंग देम. सो बेटर देन गिविंग मिल्क, यू ट्राई एंड इनकलकेट देम, गिविंग देम मोर मील्स. जैसे अगर एक बड़ा मील नहीं ले रहा है तो उसको स्प्लिट कर दो. एक साथ रोटी सब्जी दाल चावल नहीं खा रहा है तो रोटी दे दो, थोड़ा ब्रेक ले लो. दाल दे दो, चावल दे दो, थोड़ा ब्रेक ले लो. वापस अगर भूख लगती है तो गिवन समथिंग हेल्दी. सो टी कॉफी इज अ कंप्लीट नो. The other thing is too much of sugar. I remember when चीजें बता रहे हो जो इस समय लॉकडाउन में सब everybody is overdoing it. लोग जैसे 2 या 3 कप चाय पीते थे तो अभी 10-10 कप चाय चल रही है. लोग वैसे मतलब काफी दिन में एक बिस्किट का पैकेट खत्म करते थे तो अब रोज नया केक बन रहा है. So these are the things that we are eating more during this period. जबकि हमें क्योंकि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वही चल रहा है. ऐसा है ना कि बहुत समय बाद, जैसे मैंने 5-6 साल बाद बेकिंग की, क्योंकि जब मैं बैक टू बैक बेकिंग कर रही थी, मैंने देखा मेरा वेट, मेरे बच्चों का वेट, मेरे हस्बैंड का वेट, सबका वेट बढ़ गया. हम एवरी 2-3 डेज हम एक नया केक खा रहे थे. तो मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया. दैट फॉर माय फैमिलीज हेल्थ आई शुड स्टॉप डूइंग इट. पर अब मिठाइयां नहीं मिल रही, अब सारे घर की क्रेविंग आ रही है. और बहुत समय बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास उतना मेंटल स्पेस और टाइम स्पेस है कि मैं चैन से बैठकर एक केक बना सकूं. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो टाइम मिल रहा है और जो मन कर रहा है बनाने का ना, कि यार मैं भी बनाऊं या मैं भी अपने फैमिली को दूं, वो जो खुशी लगती है ना उनके चेहरे पर. सो आई थिंक दैट इज द एक्चुअल किक व्हाई पीपल आर बेकिंग सो मच एंड दे आर कुकिंग सो मच. आई माई सेल्फ एम मेकिंग सो मच मिठाई एंड एवरीथिंग. सो आपको याद होगा आपने मुझे बोला भी था कि अरे इतना सारा केक और डोनट एक साथ बना लिया. वो मैंने 16 दिन चलाया. मैंने गिना था, 4 लोग खाने वाले, वो पूरा मैंने 16 दिन चलाया था. मैंने उनको
गॉबल नहीं करने दिया, धीरे धीरे चलाया, सबके Correct. पीसेस मार्क किए। तो हमने शुगर थोड़ी बहुत वहां तो कंट्रोल कर ली, लेकिन हाँ मतलब बनाया था, सबने बनाया था। You know what? I don't know if I'm right or wrong, but I feel कि बच्चों को देना चाहिए, सारे ही टेस्ट डेवलप करने चाहिए, but एक लिमिट, देर इज अ लिमिट, यू हैव टू लिमिट एवरीथिंग। और चॉकलेट पसंद है तो तुम उसको सारा दिन चॉकलेट नहीं दे सकते, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, और वैसे भी इट इज नॉट गुड टू गिव देम चॉकलेट, सो मच ऑफ चॉकलेट। सो लिमिट इट, एक पीस दो, एक पूरा बार दे दो, बट देन मेक श्योर कि उसको बोलो कि दिस इज नॉट गुड, यू ट्राई टू कम्युनिकेट। 2 या 3 साल का बच्चा समझेगा नहीं, तुम जो बोल रहे हो ना वो समझेगा नहीं, ही विल नॉट रेसिप्रोकेट, बट ही विल अंडरस्टैंड इन हिज माइंड। प्लस दूसरा जो फैक्टर मदर्स के लिए काम करता है वो क्या है कि हम खा रहे हैं मैगी और हम बच्चे को बोल रहे हैं प्लीज मैगी मत खाओ, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो वो कैसे सुनेगा? तुम खुद खा रहे हो, मैं भी खाती हूँ, आई एम नॉट सेइंग आई डोंट ईट, आई ईट, बट आई नो माई लिमिट and I know what food groups to introduce him to. When he is asleep or when he is not around us, we eat things that is not good for him. I know it is good for bad for us also, but we know the limit. जैसे Yeah, I पिज्जा है, understand. Like, when I have to consume Maggi, I make sure कि वो इतनी छोटी सी पैक ऑफ मैगी वो इतना बड़ा बोल बन जाती है, because I add so many vegetables into it and I enjoy my Maggi that way. I add a little extra spice, so थोड़ा तो न्यूट्रिशन मैगी जैसी चीज में भी आ जाता है। या अगर हम बिस्किट भी खा रहे हैं या चॉकलेट्स भी खा रहे हैं घर में, तो हमारे पास कितने भी पैकेट रखे हो, हम एक बार में एक पैकेट खोलते हैं and we've taught it to our kids. किसी एक बच्चे को देते हैं and then we ask them to distribute it to everybody. So वो 2-2 पीस करके सबको आ जाता है, सबका शुगर भी कंट्रोल हो जाता है और जंक भी लिमिट में बॉडी के अंदर जाता है। करेक्ट मुझे भी करेक्ट यही करेक्ट, लगता है कि आप बच्चों को बंद नहीं कर सकते, ना ही आपको करना चाहिए। मतलब क्योंकि एक बार कैसे होगा पता है, अगर तुम घर पे वो चीज नहीं लाओगे और व्हेन दे गो टू स्कूल एंड व्हेन दे सी अदर किड्स ईटिंग इट, वो जो क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है, जैसे माय चाइल्ड डजंट नो व्हाट इज किंडर जॉय बिकॉज मैंने कभी नहीं दिया है उसको, एंड इफ समबडी आई डोंट बाय किंडर जॉय फॉर देम, और वो ना दादा दादी को पकड़ के अब बोलते हैं अच्छा मुझे ना किंडर जॉय लेके दो, क्योंकि मम्मी तो है नहीं, तो मैं खाकर तो देखूं कि ये क्या है जो मम्मी मुझे इतना मना करती है। मैं उसके साथ ना कम्युनिकेट ऐसे करती हूँ, किंडर जॉय ये बहुत बुरा है, इसके अंदर कुछ अच्छा नहीं है, इट इज नॉट टेस्टी, इससे अच्छा यू हैव चीज विच इज मोर टेस्टी देन दिस, लेट मी मेक यू अ गुड केक एट होम। तो मैं केक फिर मैदे की जगह पे आई मेक इट विद व्हीट फ्लावर और मिक्स फ्लावर, सो उससे एटलीस्ट ही विल नो दैट दिस इज समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर मी। वो लोग जिद करेंगे, टेंट्रम्स भी थ्रो करेंगे, आई नो बिकॉज आई टू एम फेसिंग इट, बट एक लिमिट you have to set that, you have to tell them no is a no. Once in a while giving them junk and letting them taste that is good, but mostly try that वो junk घर का बना हुआ हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो हाइजीन, दूसरा जो भी इंग्रेडिएंट्स तुम यूज करोगे वो प्योर होगा, तुम अपने बच्चे के लिए कोई भी खराब इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करने वाले हो, ना ही खुद के लिए खराब इंग्रेडिएंट्स यूज करोगे। तो अगर कोई बच्चा थोड़े बड़े एज का है, ठीक है, तो उसको अगर पिज्जा के लिए बहुत क्रेविंग हो रही है तो तुम घर पे बनाओ। आई ऑल्सो मेक इट एट होम फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई क्रेव पिज्जा अलॉट बिकॉज इट हैज सो मेनी वेजिटेबल्स एंड इट इज फुल्ली लोडेड विद चीज, सो वंस इन अ वाइल इज गुड। व्हाट आई डू इज फॉर द बेस आई डोंट यूज मैदा का बेस, आई सब्सटीट्यूट इट विथ गेहूं और मिक्स आटा, उसका एकदम थिक भाखरी बना के अच्छे से उसमें तेल डाल के अच्छे से उसको मसल के आई मेक अ गुड थिक रोटी और भाखरी out of it, and then I put all the vegetables, I even put paneer, I put tofu, whatever is available. Abhi cheese is something which is easily available, so ये चीज तुम कर सकते हो। अगर your child is craving for sandwiches, क्योंकि कुछ एज के बाद दे अंडरस्टैंड what food group is this and what food is this, तो सैंडविच को तुम सब्स्टिट्यूट कर लो, रोटी दोनों ऊपर नीचे रोटी यूज करके उसके अंदर फिलिंग सैंडविच वाला ही डालो, तो भी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। कैसे दिया और टाकोस बोलते हैं ना। हाँ, पता नहीं, मेरा बच्चा तो बड़ा होके शायद वही बोलेगा, मैं तो उसको यही लैंग्वेज में बताऊंगी भाई मेरे लिए तो यही है, तुम्हारे लिए जो भी हो, बट दिस इज समथिंग सिंपल। मेन ना बच्चों को हम जब फूड के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट दे नो दिस इज समथिंग गुड फॉर मी, दिस इज समथिंग बैड फॉर मी, आई हैव टू लिमिट दिस, आई हैव टू ईट दिस इन गुड क्वांटिटी, और इसको थोड़ा सा मुझे संभल के खाना है। जैसे चॉकलेट्स है, आइसक्रीम्स है, तो ही नोस की मम्मा मुझे एक पीस या एक स्पून या 2 स्पून से ज्यादा नहीं देने वाले, तो ही विल नॉट आस्क फॉर इट, बट उसको हैबिट डेवलप करना पड़ता है बच्चों को, उसके लिए पहले खुद को हैबिट डेवलप करना पड़ता है, वो मेन है, क्योंकि वो लोग वही देखते हैं और वही सीखते हैं, एंड दीज जनरेशन किड्स उनको सिखाना नहीं पड़ता है, वो लोग सीख जाते हैं। यस, आई थिंक बच्चों का इंटरेक्शन भी आपस में काफी ज्यादा होता है, सो आई थिंक देखो उनको दूर रखना तो मुमकिन नहीं है, एब्सोल्युटली नो, you cannot completely keep them away from all of this.
Right. So we spoke about our routines. We spoke about not consuming much caffeine and junk food. What else do you think that we should not eat? These are, I mean, these For are adults, all the time we get to hear कि अच्छा ये सब मत लो. पर और क्या है ऐसा जो हमको नहीं खाना चाहिए? आई हैव सीन कि फूड को ना टेस्टी बनाने के लिए उसमें बहुत सारा नमक डल, लाइक यू पुट अ लॉट ऑफ सॉल्ट, और उसको थोड़ा सा और नमकीन बनाने के लिए चाट मसाले डलते हैं. तो उससे अच्छा है कि थोड़ा लिमिट करो उस चीज को भी, बिकॉज टू मच ऑफ सॉल्ट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर एडल्ट एंड नॉट किड्स ऑल्सो. तो ये चीज भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ. फॉर एडल्ट इवन अल्कोहल, अल्कोहल तो मिली I नहीं am है. not, see, we are at a age where I cannot tell anybody कि तुम मत लो अल्कोहल. वो बंदा मेरे पास वापस आएगा ही नहीं कि इसके पास नहीं जाने की, तो मुझे थोड़ा भी अल्कोहल नहीं देती. I would say you enjoy that, but you should know your limit. Everything in portion control and limit is good. Out of your limit is something that is not going to be helpful. I do not suggest having alcohol. Please, मतलब take this straight. No alcohol. But No, I even if you understand were what you're somebody, trying to say. आप कहना चाह रहे हो कि ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठे हैं तो मतलब सब खाली कर दी bottles. To have a routine or maybe limit the amount of alcohol you're having. I would also correct. like to explain, share this information from my personal knowledge. I mean, whatever knowledge I have, I'd like to share that alcohol worsens depression and depressive symptoms. So, इस Correct. duration में जब बहुत anxiety है, सब थोड़ा परेशान है और बहुत अच्छी न्यूज कहीं से नहीं आ रही है, इन मौकों पर आपको वैसे भी अपना अल्कोहल बहुत स्ट्रिक्टली लिमिट करना चाहिए. जितना कम पियो उतना अच्छा है. मिनिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है. ना पियो तो सबसे अच्छा है. और वही है, आई मीन कीप इट टू द लोएस्ट पॉसिबल, लीस्ट दैट यू कैन डू. Plus smoking also. या एंड व्हेन Smoking का भी same case है. ओके, स्मोकिंग का आई वुडंट हैव मच आइडिया. No, because smoking is also not good for health. But there are people who cannot live without it. Limit it. Try and limiting it, and then you try to, divert your mind and do some therapies or something, and just get out of that habit. Plus, adding fiber to your meals. What happens is, a lot of time it happens कि fiber हम totally भूल जाते हैं. मतलब वो part ही नहीं होता है meal का. Buttermilk कोई नहीं लेता है. Water hydration. Sorry? How to include fiber? What kind of foods can we include for fiber in our food? You can add fruits and vegetables. जो वेजिटेबल का स्टॉक है जिसपे हम कुक करते हैं उसको, वो आप यूज कर सकते हो आटा गूंदने के लिए. व्हेन यू मेक पनीर, तो उसका जो पानी है वो उससे आटा गूंद लो तो आटा बहुत सॉफ्ट होता है. प्लस अगर आई हैव सीन पीपल जो फ्रूट्स खाते हैं ना, तो वो उसका स्किन निकाल देते हैं, तो स्किन में भी काफी फाइबर होता है. तो यू शुड हैव दैट. प्लस व्हेन इट कम्स टू फाइबर, इवन योर वाटर इनटेक, योर हाइड्रेशन, बिकॉज नाउ बहुत ऐसा होता है कि स्ट्रेस इतना है, काम इतना है, टाइम नहीं मिलता, ध्यान में नहीं रहता है पानी पीना, तो इवन दैट इज इफेक्टिंग योर इम्यूनिटी. सो इफ यू आर समबडी हु डजंट लाइक हु फॉरगेट्स ड्रिंकिंग वाटर, एक बॉटल ना अपने साथ लेके घुमा करो. मैं आई डू इट ऑलवेज बिकॉज यू फॉरगेट, एंड व्हेन यू सी समबडी एल्स ड्रिंकिंग यू विल इमीडिएटली रियलाइज शिट मुझे भी पानी पीना है. तो वाटर इज समथिंग व्हिच वर्क्स वंडर फॉर एवरीथिंग, फॉर स्किन, फॉर हेयर, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर इम्यूनिटी, फॉर एवरीथिंग. तो ये एक चीज यू कैन एड. प्लस आई हैव सीन दैट किड्स, मेरे बच्चे की क्लास में भी देयर आर मेनी किड्स जो फ्रूट्स खाते ही नहीं है. तो एक चीज ये है कि मदर्स, एक राइट एज है 1 ईयर के बाद जब बच्चा बाहर का खाना खाना चालू करता है, उस टाइम पे स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग फ्रूट्स 1 by 1. एक फ्रूट 7-8 डेज के लिए इंट्रोड्यूस करो, देखो कैसा उसका बॉडी रिएक्ट करता है, स्टार्ट गिविंग हिम, देन इंक्लूड मोर फ्रूट्स. बट सारे ही फ्रूट्स बच्चों के लिए जरूरी है. लाइक every fruit, even papaya, chiku, all these fruits are very healthy and you should include them. तो उससे भी immunity बढ़ती है. Plus vegetables भी ऐसे है. Now broccoli, my child will not eat broccoli. I know he will not eat cauliflower. I know. What I do is I boil it, I make a puree and add it to the paratha or add it to the vegetable. तो वैसे करके parents can, you can hide the ingredients and make that food tasty. जैसे पाव भाजी बनाते हैं, वो सारे ही बच्चों की फेवरेट होती है. तो आलू का पोर्शन थोड़ा सा कम करके पंपकिन डालो बॉईल करके, बॉटल गॉड डाल दो बॉईल करके. आई इवन पुट ब्रिंजल, सो यू कैन डू दैट बिकॉज ब्रिंजल वो ऐसे नहीं खाने वाला है. तो पाव भाजी में यू कैन पुट ऑल डैम वेजिटेबल्स इन इट. उसको अच्छे से कुक करके जस्ट स्मैश इट एंड देन मेक एज यू मेक योर रेगुलर पाव भाजी. वो टेस्ट नहीं आएगा उनको, बट उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है. तो ये एक चीज भी कर सकते हो. पराठा जो जैसे ब्रोकली है, जैसे आई सेड ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, ये सारी चीजें ही विल नॉट हैव. तो आई मिक्स अ लिटिल पनीर टू इट और चीज टू इट एंड मेक अ पराठा. सो उससे उसको चीज का टेस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा, वेजिटेबल का टेस्ट थोड़ा सा कम आएगा.
फिर आई हैव अ हैबिट, वीक में एक दिन पालक का पराठा तो बनता ही है, बिकॉज उसको मैं टिफिन में भी वो देती हूँ, ही लाइक्स इट। सो उसमें आई पुट चीज, फिर कभी कैरेट का प्यूरी डाल दिया, कभी टोमेटो का प्यूरी डाल दिया, जो भी वेजिटेबल्स इजीली अवेलेबल हो इस टाइम पे वो दे दो। बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेजर सर्विंग होना चाहिए अलोंग विथ रोटी। तो अगर वो रोटी, जैसे तुम उसको और इंटरेस्टिंग, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको तुम फ्रैंकी बना दो, तो वो भी, डोंट मेक नॉर्मल फ्रैंकी, बीटरूट डाल दो, बीटरूट का जूस डाल दो, प्यूरी करके थोड़ा सा डाल दो, उसका आटा गूंद के मेक अ रोटी, और उसके अंदर फिलिंग में पुट ऑल द वेजिटेबल्स दैट ही लाइक्स, जो वेजिटेबल उसको पसंद नहीं है उसको आटे में डाल दो, तो ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। प्लस वो रेड कलर देख के थोड़ा सा अपीलिंग भी लगता है, थोड़ा सा पूनम, फूड मैं ऐड कर आपसे ये लो। भी समझना चाहती हूँ, सॉरी, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि प्यूरी मिक्स करो, जैसे माय किड्स दे ईट ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स वो बहुत खुशी से खाते हैं, लेकिन सब्जियां उनकी लिमिटेड है, जैसे लौकी मेरे घर में नहीं खपती, करेला नहीं खपता, यू नो दीज थिंग्स, even if I want to make a puree and add into a paratha. So for example, if I'm only cooking for 2 children, for Ishu and Mishu, so और मान लो 4 रोटी बनेगी, तो मैं मुझे उसमें कितनी प्यूरी मिलानी चाहिए? मतलब क्या आधी लौकी मिला दूं, या 2 या 3 चम्मच प्यूरी काफी है? कितना डालना चाहिए? सी लौकी का क्या है पता है, लौकी को तुम स्मैश कर सकते हो, उसका पूरा जूस निकाल के रख दो साइड पे, पूरा स्मैश करके वो लौकी आटे में डाल दो, पुट ऑल द सीजनिंग, और उसको फिर पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती, लौकी में इतना सारा फाइबर, इतना सारा पानी होता है कि उसको गूंदने के लिए यू डोंट नीड वाटर, एंड इवन इफ यू नीड वाटर तो ये जो पानी तुमने स्क्वीज किया है वो पानी यूज कर दो, और पराठे के साथ ना उसको तुम सूप दे दो, तो वो जो पानी निकाला है वो सूप में डाल दो। बट आधी, अगर 4 पराठा बन रहा है, कितना डालना चाहिए? जैसे मान लीजिए अगर हम 4 रोटी या पराठा बना रहे हैं, तो कितनी क्वांटिटी उसके अंदर वो सब्जी हम डाल सकते हैं कि बच्चे को टेस्ट पता ना चले लेकिन उसको न्यूट्रिशन मिल जाए? उसको तुम आधे से आधा, मतलब जस्ट दिस पीस, फोर जन के लिए दिस पीस इज इनफ, क्योंकि वो उसको जब तुम छीनोगे या ग्रेट करोगे उसको, या उसका पूरा तुम ये करोगे, प्यूरे निकालोगे, तो वो क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होता है। जैसे ये बात हो गई लौकी की, अगर तुम टोमेटो यूज कर रहे हो तो उसका क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो छोटे होते हैं। प्लस अगर तुम पालक यूज कर रहे हो तो उसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज वो पूरा पिस के ग्राइंड होके वो थोड़ा सा ही बन जाएगा। यस, तो वो चीज तुम कर सकते हो। Makes sense. उसमें अगर तुम्हारा बच्चा ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहा है, जैसे देर आर, आई हैव अ क्लाइंट जिसका बच्चा ना ड्राई फ्रूट की साइड से ही डजंट वांट ड्राई फ्रूट एट ऑल, यू गिव हिम फ्रूट्स इट्स ओके, तो व्हाट वी सजेस्ट हर मदर इज, उसको तुम ड्राई फ्रूट को एकदम क्रश करके उसके रोटी के आटे में डाल दो, उसके दूध में पाउडर एज अ पाउडर मिक्स कर दो, और उसको ना चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो व्हाट आई टेल देम इज पुट थोड़ा सा लाइक यू नो जस्ट एक टिप कोको पाउडर और एल्स बॉर्नवीटा डाल दो, तो भी एक, they will not know what they are eating. So ये एक चीज हो सकती है. 1 second. Yeah. Other thing which is spoiling the immunity and harming the immunity even after having, जैसे कुछ बोलते हैं कि मेरा तो बच्चा सारा ही कुछ खा रहा है तो वो immunity उसका बहुत अच्छा है. Sometimes the way you cook the food is also very important. अगर कुछ चीजें ओवर कुक हो जाती है तो उसका न्यूट्रिएंट्स किल हो जाता है. जैसे कैप्सिकम है, क्यूकुम्बर है, अनियंस है, कैबेज है, उसको थोड़ा सा तुम सॉटे करके उसको थोड़ा क्रंची रहने दो, तो उससे उसका न्यूट्रिएंट ज्यादा कुक होके किल नहीं होगा, क्योंकि आई सीन कि बच्चा खाता नहीं है तो उसको थोड़ा ओवर कुक करके स्मैश करके दे दो तो वो खाएगा, तो इतना भी मत स्मैश करो, और 1 साल के बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा हैबिट डालो खाने का. हैबिट बहुत छोटी एज से डालनी पड़ती है, वरना कुछ फूड ग्रुप्स वो नहीं खाते तो नहीं ही खाते. So this is very important to make sure that you cook it in the right way. So anything else you want me to cover? Any questions, or should I go ahead? I have lots of questions. I have some questions from the audience, and before that, I'll ask my question because my live session. So I go first. So what I wanted to know is that do you think drinking milk for grown-ups is important? I mean, क्या उनको एक बार पी लेना चाहिए या नहीं क्या? Yes. See, I am not falling into the controversy of dairy लेना चाहिए, dairy अच्छा है नहीं अच्छा है, totally your call. I take it and I suggest my clients to take it, and not even a single complaint from last 9 years. So I think that is the right practice. Plus हम छोटे थे, हम लेते थे, और तभी हमारे पास प्योर मिल्क तभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है, अभी भी वो अमूल वाला ही आता है या नॉर्मल डेयरी वाला ही आता है. सो टेक इट. हाँ, ओवर लिमिट मत करो, 1 ग्लास ठीक है. आई हैव अ हैबिट कि रात को मैं हल्दी वाला दूध या प्लेन दूध पी के सोती हूँ, पर वो मेरी बचपन से आदत है. कभी कभी व्हेन आई एम PMSing or when I crave a lot of sugar, I even put Bonvita or cocoa powder and a little sugar to it. But milk is good. Okay.
All right. Great. Now let's go to the questions that we have. So Lotus Nirvana asks that while losing weight, what are the best foods for snacking in between meals? Hi, there are many options that I've given it on my grid. You can go check out. I'll just give you a few more. You can munch on to makhanas. If you're craving a lot of sugar, you can have caramelized makhanas. It is very easy to make. If you don't know, you can DM me. I'll explain it. Third is murmura. Murmura mein you can play around with a lot of varieties. You can put sprouts, you can put vegetables, you can put nothing and just थोड़ा सा उसमें नमक डाल के you can have it. और वो छोटी मतलब एक कटोरी में तुम्हारा पेट भर जाएगा. Then you can have roasted चना and roasted peanuts. Peanuts चाट ले लो जिसमें तुम vegetables डाल दो. ये चीज कर सकते हो. And for more options, it is there on my grid. I've just recently put up last week, so you can go check it out. All right. So Seatback Upright wants to know that cheese is supposed to be highly processed and it has a lot of salt. I mean, Yes. yeah. So should cheese be avoided or given? See, For children. again, I'll say the same thing. Limit is the thing. You have to limit it. चीज बोला तो ऐसा नहीं कि रोज ही चीज पराठा खा लो, रोज ही चीज दे दो. वीक में एक बार ठीक है, उसको भी क्वांटिटी करो. पूरा क्यूब मत दो ना, एक क्यूब को तुम डिवाइड कर लो. जैसे मेरे बच्चे ने जब पराठा खाना स्टार्ट किया था तो उसने सिर्फ चीज पराठा खाना स्टार्ट किया था बिकॉज वो किसी के टिफिन में उसने देखा था और खाया था. तो व्हाट यू डू इज व्हाट आई डू इज एक क्यूब का मैं 4 पार्ट्स करती हूँ एंड देन उसको periodically वैसे देती हूँ. It is a lot of processed thing and it is not easy to make. I will not make it at home. It takes a lot of pain. So rather buy it from a good brand, but limit karo. The sodium quantity in cheese is very high. The reason Yes. why we ask, I mean, dietitians ask anybody to limit their content of salt is because of the sodium. And अगर वही sodium हम salt में नहीं ले रहे हैं और फिर हम cheese over consume कर लेते हैं, so it is a problem. But if you Correct. think कि हम डोमिनो से पिज्जा खा लेंगे उसमें बहुत चीज होता है तो वो हेल्दी हो जाएगा, तो वो तो कभी नहीं होना है क्योंकि उनकी चीज तो और बर्बाद है. So again, as Forum said, that limiting, setting a quantity makes a lot of sense. Portion control. Portion control, portion control, portion control. Yes. My kid only eats apples and bananas, no other fruit. I'm worried about their vitamin C. Okay, so mummies to bunnies, what you can do is, you try to teach them थोड़ा flashcards लेके, थोड़े apple, कोई fruits का कुछ toys है वो लेके, उसको थोड़ा उसके साथ communicate करो. अगर I'm assuming तुम्हारे बच्चे थोड़े से बड़े हैं, जो understand करेंगे what you are talking. And give them, like, show them. अगर girl है, तो उसको तुम बोलोगे कि अगर तुम ये ऑरेंज खाओगी तो तुम बहुत अच्छी लगोगी, योर स्किन इज गोइंग टू ग्लो एंड यू विल गेट नाइस नेल्स, यू गेट नाइस हेयर. तो वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनके माइंड में डेवलप होता है. हाँ, मुझे भी मम्मा के जैसे गुड स्किन चाहिए तो आई हैव टू हैव इट. तो ट्राई टू प्ले विद देम. थोड़ा सा उसको खेलते खेलते इंकलकेट करो, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो, तो दिस माइट हेल्प. अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा जूस फॉर्म में, स्टार्टिंग में जूस फॉर्म में दे दो, बट उसमें शुगर मत ऐड करो. तो अगेन दैट इज अ गुड ऑप्शन. प्लस विटामिन सी में तुम गुआवा भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऑरेंज ही दो. सो ट्राई टू मिक्स एंड मैच द थिंग्स एंड सी व्हाट इज वर्किंग फॉर योर चाइल्ड. आई थिंक हैविंग लेमनेड इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. या फिर किसी सैलेड में या बाकी फ्रूट्स के ऊपर आप थोड़ा चाट टाइप का बना के उसमें नींबू निचोड़ दो. मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे नहीं अभी लाइव सेशन ही हुआ था हमारा वाकिया के साथ, उसने बताया था 2 से 3 नींबू एक दिन में अगर कोई ग्रोन अप खाता है तो उसकी डेली विटामिन सी रिक्वायरमेंट इज इनफ. सो आई थिंक बच्चों के लिए Yes. 1-1.5 नींबू शुड बी गुड. So include lemon in some form or the other, or simply make a shikanji or a lemonade and give it to them and they'll sip it away. So every little thing. Sorry, go ahead. No, go ahead. Sorry. I was asking the next question. So every little Let thing me just wait. I just I have something to say for the lemon. For the lemon, if you 1 second. Lemon for vitamin C, I'll say अगर कोई sprouts, अगर कोई even you like an adult or a child, this is a small hack. अगर कुछ आयरन कंटेंट से ज्यादा वाला फूड तुम खाते हो, जैसे स्प्राउट्स हो गया, राजमा हो गया, ऐसा एनी फूड दैट इज फुल ऑफ आयरन, उसके ऊपर दाल हो गया, उसके ऊपर यू जस्ट स्क्वीज लेमन व्हेन यू सिट फॉर ईटिंग इट. पहले से डाल के रखो मत, जब तुम खाने बैठ रहे हो तभी जस्ट स्क्वीज इट एंड हैव इट. तो उससे आयरन अब्जॉर्प्शन बहुत इजी होता है. प्लस यू गेट द फुल न्यूट्रिशन ऑफ दैट फूड. जैसे दाल ले लो तो उसका फुल प्रोटीन और फुल आयरन तुमको मिलेगा. दिस इज अ वेरी स्मॉल हैक. दिस माइट हेल्प इवन बच्चों के लिए. Plus a little sour dal, it's something that my family absolutely cherishes. And हाँ, थोड़ा खट्टापन दाल में, it tastes very उसमें nice. थोड़ा सा, you know why गुजराती दाल्स, it is a mixture of sweet, salty, थोड़ा सा spicy and plus tangy.
If you see a traditional Gujarati dal that is made at our place, जो हम जैगरी डालते हैं तो वो सारनेस थोड़ा सा किल होता है. We don't put sugar, we put jaggery. We put lime. अगर lime नहीं में जैसे nowadays because of this lockdown thing, I am not getting lime anywhere. And even if I'm getting this tiny one for 10 rupees. So I don't, इतने छोटे से मैं कैसे 4 जन का फैमिली में मैं किसको दूं किसको नहीं दूं. And it is not easily available. So what we do is we put kokum into it. जो ब्लैक कलर का कोकम आता है वो डाल दो तो उसमें भी इट सॉल्व्स द पर्पस. कोकम जो है ना यहाँ नॉर्थ में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है. तो ठीक है, जिसको जो मिल जाए वो यूज करो. सो एवरी रॉ मैंगो अगर मिलता है तो वो भी आप डाल सकते हो. हाँ, रॉ मैंगो का तो सीजन चल रहा है. So every little thing, Happiness is asking that home chores can be counted as workout because we didn't used to do it earlier. No. And now we are doing it. no, exactly no. बिकॉज उससे उतना कैलोरीज बर्न नहीं होता क्योंकि आप जो पहले खाते थे ना उससे बहुत ज्यादा खा रहे हो अभी. इस बहाने से अरे यार कितना काम है, मैं बहुत पसीना बहा रही हूँ, मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तो वो 1-2 रोटी की जगह पे 4. बट मैं एक बात बोलूंगी, झाड़ू पोछा ना व्हेन आई वाज वेरी यंग, मेरे यहाँ पे मेड आती थी, वो आके करके चली जाती थी, उसके बाद मेरी मम्मी वापस करती थी. तो आई वाज लाइक क्यों कर रही हो? तो शी वाज लाइक इट इज गुड फॉर थोड़ा सा वर्कआउट हो जाता है क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता है तुम लोग के जैसे थोड़ा वर्कआउट करने के लिए. सो इट इज नॉट काउंटेड एज वर्कआउट बट इट इज गुड. You should do it. उससे स्क्वाटिंग होता है. झाड़ू और पोछा की स्टाइल भी बहुत बदल गई है. Now we are using those spin mops and I think they take lesser effort than sitting down and literally wiping the entire floor. So yes. So Vidhi Rohan is asking that my 22-month-old daughter keeps asking for food every few minutes. Is it right to keep offering? I try to give her nuts, raisins, chana, fruits. Also she has her meals properly. Is it okay? No, it is not okay. Yeah, go ahead. See, you just after this lockdown, or if you have access to her or his pediatrician, okay, her, it's daughter. So you can ask your daughter. It can be because of worms also. अगर पेट में worms है उसकी वजह से वो बच्चा घड़ी घड़ी खाना मांगते रहेगा, उसको भूख लगती रहेगी, तो this can be a reason. तो एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर लो. उसको ना थोड़ा सा 22 months old को कुछ समझ नहीं आएगा स्केड्यूल वगैरह का, बट थोड़ा उसको समझाओ कि दिस इज योर ईटिंग टाइम, यू हैव टू ईट अभी, देन ममा विल नॉट गिव यू एनीथिंग. तो थोड़ा वैसे करके, एंड प्लस यू चेक आउट फॉर द वर्म्स, क्योंकि अगर वर्म्स ज्यादा होते हैं तो ये चीज हो सकती है. I will need you to excuse me for 1 minute. हमारे घर में आंधी आ रही है. I just need to tell my husband. Just give me 1 second. I'll be back. Okay, Vidhi, this has started after lockdown. It can be a reason of boredom. Try to give her more time. Try to play with her. Increase your play time with her. थोड़ा सा उसका mind divert करो. थोड़ा songs लगा के you dance along with her. तो उसको भी थोड़ा मन बना रहेगा. If you are too much into work, so थोड़ा time निकाल के उसके लिए. This can be because of boredom. If it is not because of worm. So she's saying that this has started after lockdown, and yeah, I think it is because of boredom. One of my sons is forever hungry. और वो अपना खाना खाने के बाद फिर उसको अपने भाई का खाना बहुत अच्छा लगता है, फिर उसका खाना खाने के बाद उसको मम्मा का खाना अच्छा लगता है. सो वो बोर्ड है और उसको मैंने उनको वही बोला, तो उसको मजे आ रहे हैं. खास करके अगर आप अलग लोग, there is an आंधी तूफान coming here, so the light is gone. I'm sorry I had to abruptly end the live session, but I think most of our question answers are covered. In case you have any more questions, you know that you have to message me or you can directly message forum. Till then, see you later. Bye bye.